हाय एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी आश्रम। मैं हूँ सौम्या और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेड 6 खोज एग्जाम में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशंस। वैसे आई होप आप सबका खोज एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा था। देखिए, ऐसे टाइप के एग्ज़ाम ज़रूर देने चाहिए। इससे फ़ायदे क्या हैं? Number one, the students actually come to know about their own potential. They know what are their strengths, what are their weaknesses and where to work upon. Strategies कैसे बनानी है, अच्छा किस तरीके के questions आते हैं. If you notice, we had given a variety of questions here. Though they were all objectives, but some were moderately difficult, some were a little twisted, कुछ बहुत easy थे, कुछ में application based question थे. So as and when you notice, the student gets a variety of questions to go for the solution paths, right? अच्छा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो बढ़ ही रही है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख रही है, खुद की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता चल रही है. एंड एज दिस इज द ऑफिशियल एंट्रेंस एग्जाम फॉर आईआईटी आश्रम, वी डू हैव अ मेरिट लिस्ट एंड द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स गेट many benefits here. There are many exciting scholarships to avail from. तो चलिए एक बार क्विकली जो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री वाला पोर्शन था उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं. So we begin with question number 11. That is question number 1 of chemistry. Okay. Which one is an opaque material? Opaque मतलब क्या? The material will not let any light to pass through it. We will not be able to see literally anything through it, right? ऐसा भी नहीं कि partially दिख रहा हो. So water तो transparent होता है. Air भी transparent है. Wood, can we see through wood? No, right? So wood is the opaque material here. Okay, glass is also transparent in nature. So out of the options which were given to us, यहाँ पे the only opaque material, I'm so sorry, I'll take my words back. The only opaque material was wood. The rest three are actually transparent in nature. Okay, next question. Wool कहाँ से obtain हो रही है? Wool is obtained from which of the four? So we know that wool is taken from the skin of the animals, right? अच्छा, rabbit में से भी wool निकाली जाती है, sheep में से wool निकाली जाती है, correct? तो hair of the animals, technically speaking. Okay, seed, stem of the plants, cocoon से क्या निकल रहा था? Silk. Stem of the plants, jute and also linen. And what about seeds? We were actually separating the cotton fibers from the seeds, right? Wool was coming from the hair of the animals. Okay, so option B was the correct answer. Question number 13 now. Hand picking is used to separate which of the following? अच्छा, हैंड पिकिंग आप यूजुअली कब करते हैं? व्हेन द सैम्पल साइज इज स्मॉलर एंड देयर इज अ बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन द द कॉम्पोनेंट्स. उसका शेप अलग होगा, साइज अलग हो सकता है, कलर कैन बी डिफरेंट, द टेक्सचर कैन बी डिफरेंट. इट इज़ वेरी ईजी टू सी द सेपरेशन बाउंड्री बिटवीन द कॉम्पोनेंट्स. Okay, so can I actually handpick salt and water? No, they are actually soluble. तो क्या मैं उसको hand से separate out कर पाऊँगी? नहीं. Wheat and stones? Yes, this is very easy to be separated through hand. Wheat का आप देखिए, shape, color, size, stone से बिल्कुल अलग होगा, ठीक है? तो एकदम से नज़र में आ जाएगा और हाथ से उसे उठा के separate out कर सकते हैं. Sugar, salt and water, again they are soluble. उन्हें हम हाथ से नहीं separate out कर पाएंगे, right? And oil and water, they are immiscible liquids. You cannot separate them through hands. So the only correct answer here was option B. The next question here. Which of the following are chemical changes? Chemical changes कौन से होते हैं? जिसमें एक नया chemical composition बनता है. We have the components. They undergo certain chemical changes, मतलब they are undergoing chemical reaction and making something new. अगर कुछ नया नहीं बन रहा होता, chemical composition as it is रहता, तो वो होता physical change, right? Okay, first वाले option में melting of wax and freezing of water, both are physical changes. So option A is wrong. Rusting of iron, burning of paper, these two are chemical changes. देखिए, rusting of iron में क्या होता है? Iron reacts with water and oxygen in the air and it makes iron oxide. तो देखो, iron and oxide जो है वो तो chemically different है.
ओके, बर्निंग ऑफ पेपर में क्या हो रहा है, इट इज़ गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, थोड़ा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, राइट, इसमें स्मोक भी निकल रहा है, तो ये भी क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ. ओके, डिसॉल्विंग शुगर एंड बॉइलिंग वाटर अगेन वर फिजिकल चेंजेस. कटिंग वुड वॉज अ फिजिकल चेंज, टीयरिंग पेपर अगेन वॉज अ फिजिकल चेंज. ठीक है, तो खाली ऑप्शन बी में दो पेयर ऐसा दिया है जो कि दोनों ही केमिकल चेंजेस हैं. ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन 15 नाउ. Jute fiber is obtained from, it is actually obtained from the stem of the plant. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. उसे पहले पानी में डाला जाता है, रेटिंग करी जाती है, उसके फाइबर्स को सेपरेट आउट करा जाता है. ठीक है, बट विच पार्ट ऑफ द प्लांट, द स्टेम पार्ट ऑफ द जूट प्लांट. ओके, क्वेश्चन 16 नाउ. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब चारों में से फॉल्स कौन सा वाला है. एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन, ये तो सही है. प्योर वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है. सी, प्योर वाटर विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसको कंडक्टिंग बनाने के लिए इसमें या तो सॉल्ट या एसिड डालना पड़ता है. अगर हम बोलते हैं टैप वाटर, तो टैप वाटर में तो देयर आर मिनरल्स एंड सॉल्ट्स ऑलरेडी डिजॉल्व, राइट, गैसेस आर ऑल्सो देयर, तो वो कंडक्ट कर सकता था इलेक्ट्रिसिटी को, बट प्योर वाटर नहीं करेगा. सो प्योर वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Okay, let's see the other two also. Water exists naturally in all three states of matter. Yes, that is true. In solid form, ice, liquid form, water, gaseous form, steam, and also water vapor. ठीक है. Fourth option, nitrogen is the largest component of air. ये भी सही है. Almost 78% of the air is nitrogen. Okay, moving to question number 17 now. A magnet is brought near a mixture. अभी mixture में क्या क्या है? We have iron filings, मतलब क्या, filings in the sense is चूरा, powder, right? So iron का चूरा, iron का powder, that is iron filing. और कौन साथ में मिक्स करा है, सल्फर. Now see, they are only physically mixed here. आयरन फाइलिंग को आप मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर सकते हैं, सल्फर को कर सकते हैं नहीं. यहीं से आंसर आ गया. यस, ओनली आयरन फाइलिंग्स विल बी अट्रैक्टेड. This is option C. चलिए, question number 18 now. A student mixes sugar with water. Sugar is not seen after stirring. हमें पता है शुगर के साथ क्या हो रहा है, वो तो पानी में डिसॉल्व होता जा रहा है. बेसिकली क्या हो रहा है, the water molecules were having spaces between them and those spaces were taken up by the sugar particles. इसीलिए वॉल्यूम भी इंक्रीज नहीं हो रहा था, एज इट इज ही रह रहा था, राइट. देखो, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. ठीक है, ये जो मैं एस्ट्रिक मार्क्स यूज कर रही हूँ, अज्यूम करिए दीज आर वाटर पार्टिकल्स. ठीक है, और इसके बीच बीच में शुगर पार्टिकल्स ने ये वाली स्पेसेस को भर दिया, तो वॉल्यूम तो उतना का उतना ही रहा पानी का. Now again come, a student mixes sugar with water. Sugar is not seen after stirring. Why did this happen? The sugar disappeared? No. The sugar evaporated? No. Sugar formed a new component? जी नहीं. Sugar dissolved to form a solution. And solution, when we say, it is actually making a homogeneous mixture. देखिए, यहाँ जो शुगर है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है पूरे पानी के बल्क में. ऐसा नहीं कि ऊपर ज़्यादा मिक्स हो गया नीचे कम मिक्स हो गया. नो, इट इज़ एक्चुअली मेकिंग अ होमोजेनस मिक्सचर हियर. ओके, लेट्स मूव टू द 19th क्वेश्चन. ओके, सो देयर इज अ पर्सन बूझो. ही वेंट टू द क्लॉथ शॉप. नाउ देयर ही फाउंड अ फैब्रिक विच वाज स्मूथ टू टच, हैड वाइब्रेंट कलर एंड ऑल्सो हैड शाइन. ओके, टच में स्मूथ है, सुंदर सा, ब्राइट सा, चमकीला चमकीला सा दिख रहा है. क्या ये कॉटन हो सकता है? नहीं, कॉटन कंपेरेटिवली कोर्स होता है. वुल हो सकता है? हाँ, बट वुल भी बहुत सॉफ्ट नहीं होता टच में, ये भी थोड़ा सा कोर्स ही होता है. सिल्क, यस, सिल्क में ये तीनों चीज़ें हो रही हैं. एंड जूट ना, ये तो बहुत ही कोर्स होता है ना, ये तो काफ़ी रफ सा सरफेस होता है. सो आउट ऑफ द 4, सिल्क इज द करेक्ट आंसर. ओके, इट वॉज स्मूथ टू टच, silky as we say, it had a vibrant color and it had that luster, that is the natural shine on it. Okay, we come to the last question now. Which part of an atom is negatively charged? अच्छा,
एटम किस चीज़ का बना होता है? 3 सब पार्टिकल्स का, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए अब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता एंड हेंस इट इज न्यूट्रल। अब यहाँ जो न्यूक्लियस लिखा है, प्लीज रिमेंबर ये जो न्यूक्लियस है केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम के सेंटर में होगा, इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? विच ऑफ द पार्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड? द आंसर इज इलेक्ट्रॉन। So that's it. We come to the end of the discussion here. I hope you all did fairly well and I wish you all the best.